तो we'll do shock wave. हाँ, एग्जाम में आने वाला ये shock. हाँ, shock is something that all of us should know. हाँ, so what do you understand by shock, Rupali? Shock. If I say what is shock, अब क्या बोलोगे? Not proper blood supply. Okay. So reduction in blood supply, reduction in blood. Then oxygen level coming down and perfusion. Okay, perfusion related problem, which can be defined with a blood pressure that is how much? 60, Less than 90 systolic, less than 65 mean arterial pressure. Okay, so whenever we talk about shock, we should say that when the blood pressure is less than 90 systolic or when the mean arterial pressure is less than 65, it is categorized as shock. Okay, it is categorized as shock. And in shock, the things that you are basically going to have is a reduction in perfusion. You understand what is perfusion? Perfusion क्या है? What is perfusion? कि खून पहुंच रहा है. Blood is reaching somewhere. That blood is reaching somewhere. You are understanding, sister? You are understanding? Blood is reaching somewhere. That is shock. Okay, it's not. If it's not reaching, it is shock. Okay, clear? Clear till now? Yes. So if a patient has got less than 90 systolic blood pressure, we are assuming. Don't write anything. Listen, understand. We are thinking that this pressure is not allowing the blood to reach the various organs. That means it is not perfusing the organs. The word is perfusion. Lack of perfusion. Clear? Lack of perfusion. Clear? ये pressure होता क्या है? What is this pressure? This pressure is nothing but if this is your vessel wall. Okay, if there is blood inside, the blood is exerting a pressure. This is what is blood pressure. If there is a vessel, there is blood inside it. Okay, and because the blood is exerting a pressure on the vessel, it is called as blood pressure. Simple. So if you want to understand shock, you must think of it as a pump and a bucket. A pump and a bucket. How does this work? So the pump pumps blood into the bucket. Okay, the bucket gets filled up because of that. Okay, and then further this goes to various organs and goes back into the heart. So the heart is the pump and the bucket is your vessels and organs. Your heart is the pump and your vessels and organs are this. Clear? Clear? This is how our circulation works. Continuously this works. And all the pressure that you are seeing over here is because of this pressure that is exerted on the walls. You understand? It's because the pressure that is exerted on the walls. Clear? Alright. So, how do you classify these shocks? The blood pressure, why is this getting low? This is getting low for various reasons. One is that the water itself is low. अगर पानी कम हो गया, शॉक कम हो जाएगा. Right? So this is categorized as very good. Hypovolemic shock. Hypovolemic shock is of two types. What are the two types? One is because of hemorrhage. Hemorrhagic shock. Okay, that means what is happening here? Blood loss हो गया. दूसरा हो गया non-hemorrhagic. Non-hemorrhagic में क्या हो रहा है? Dehydration हो रहा है. Clear? Dehydration हो रहा है. Hemorrhagic and non-hemorrhagic. Simple? Yes. Simple? So hypovolemic shock में या तो फिर blood जा रहा है नहीं तो पानी जा रहा है. और अगर वो blood और पानी इसमें कम अगर हो गया
ब्लड और पानी अगर कम हो गया तो जो हम प्रेशर की बात कर रहे हैं वो प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। क्लियर? Any doubts in hypovolemic shock? Any doubts in hypovolemic shock? No. Right? Clear? Simple. तो क्या रहेगा इसका ट्रीटमेंट? इसमें हम लोग पानी दे देंगे, we'll give back the water. इसमें क्या what we'll give? We'll give back the blood. We'll give back the water, we'll give back the blood. Simple. Clear? Any doubts here? So this is hypovolemic shock. Right? Then the next kind of shock is when there is a problem in this pump. When there is a problem in this pump. What is this pump? Heart. So what will this called as? Cardiogenic shock. ठीक है? Cardiogenic Shock. shock. Clear? Cardiogenic shock. Cardiogenic shock में what is the problem? The problem is the Heart pumping. तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? बीपी कमी है, बिकॉज शॉक का डेफिनेशन वही है। बट द प्रॉब्लम इज व्हाट? द हार्ट इज नो लॉन्गर पंपिंग वेल। व्हेन आई से पंपिंग वेल मींस 45% से ऊपर इजेक्शन फ्रैक्शन होता है। व्हेन आई से पंपिंग वेल मींस इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब क्या है? ईएफ क्या होता है ये? एट अ टाइम कितना ब्लड बाहर जाता है इज स्ट्रोक वॉल्यूम। कितना ब्लड बाहर जाता है वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हम लोग जब पीको डालते हैं तो एसवी करके दिखता है ऊपर, एसवी वो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, मतलब कितना बाहर जा रहा है। तो जो बोल रही है कितना बाहर जा रहा है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, एसवी। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है? तुम्हारा हार्ट इतना बड़ा था, इतना छोटा हुआ था, इतने से इतना कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसको फ्रैक्शन बोलते हैं हम लोग। समझ रहा है? कॉन्ट्रैक्शन जो बोलते हैं उसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो जब भी हम कार्डियोजेनिक शॉक की बात करते हैं तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है। समझ में आ रहा है? कॉन्ट्रैक्शन, नॉट द अमाउंट, इट्स अ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है? सो कार्डियोजेनिक शॉक इस तो इसलिए जब हार्ट फेलियर की बात हम करेंगे वो अलग चीज होगी। हार्ट फेलियर दो तरीके का हार्ट फेलियर होता है। अगर ये तो शॉक की बात कर रहे हैं हम लोग, हार्ट फेलियर दो तरीके का हार्ट फेलियर होता है। एक तो हार्ट फेलियर तभी होगा जब हार्ट पंप कम करेगा। तो हार्ट फेलियर with low or reduced ejection fraction. Heart failure with reduced ejection fraction. When I say reduced means less than 45. हार्ट अगर कम पंप करेगा उतना ही कम ब्लड इधर जाएगा। समझ में आया? रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। क्लियर है दिस? हाँ। दूसरा होता है हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। हार्ट फेलियर विद, ठीक है? ये क्या है? प्रिजर्व का मतलब क्या हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिजर्व? इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा, लेकिन हार्ट फेलियर में क्यों जा रहा है? हार्ट फेलियर में इसके लिए जा रहा है बिकॉज आगे प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो पंप नहीं कर पा रहा। इधर का प्रेशर, आगे का प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो पंप कर रहा है तो भी जा नहीं रहा है आगे। तो इसको क्या बोलते हैं? हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व। दोनों में पल्मोनरी एडिमा होता है, दोनों में पल्मोनरी एडिमा होता है, मतलब पानी भरता है लंग्स में, दोनों में। क्लियर? तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? हार्ट को जो पल्मोनरी एडिमा है उसको ट्रीट करो। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? सबसे प्रेशर कम, प्रेशर कम करो ना, इसका प्रेशर कम करो। इसका अगर प्रेशर कम कर दिया तो ये बराबर काम करेगा। बेड नंबर 1 साउथ साइड में जाके देखो उसको, ये वो है बेड नंबर 1 साउथ साइड। बेड नंबर 2, बेड नंबर 1 है 1 10 बेड नंबर 10, ये वो है। और बेड नंबर 1 जो नॉर्थ साइड में है वो ये है। हाँ, नहीं तो साउथ में भी अगर जाओगे तो बेड नंबर 1 साउथ में बेड नंबर 11। हेलो, so bed number 11 ना, bed number 11 is this one and bed number 10 is this one। आप दोनों जब भी आप टॉप में जाओगे, नीचे जाओगे तो दोनों देखो, ओके? दोनों पेशेंट है वहां पर। 11 is HF REF
and 10 is HFpEF. ठीक है, ये हो गया हार्ट फेलियर। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्डियक शॉक की बात कर रहे हैं। हाँ, इसमें हमने क्या बोला? प्रॉब्लम क्या? पल्मोनरी एडिमा, डिस्निया, ये वो। शॉक में क्या है? तो कार्डियक शॉक किस में होता है नॉर्मली? रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। ओके, कार्डियक शॉक। सो समझ में आ गया कि कार्डियक शॉक क्या है? तो कार्डियक शॉक से मेरे को निकलना हो तो मेरे को हार्ट को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया पेशेंट को, हार्ट अटैक आ गया। Myocardial, once the patient gets a myocardial infarction, his heart functions become low. Since his heart functions have become low, I want to improve his heart functions. So I do angioplasty. Cardiac shock. Clear? What is the next shock? The next shock is distributive shock. Distributive shock. Now, what is distributive shock? The word is distributive. So, what do you think is distributive shock here? By looking at this diagram, the problem is everywhere here only. So, what is distributive shock? सर इसमें जो वेसल्स है वो डायलेटेड। हाँ, very good. इसमें क्या हो गया? वेसल्स तुम्हारा डायलेट हो गया, कंपार्टमेंट्स डायलेट हो गए। समझ में आ रहा है? अगर कंपार्टमेंट डायलेट होगा तो ये जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, ये ब्लड जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है वो कम हो जाएगा। बराबर है कि नहीं? बराबर है नहीं? तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। मतलब the blood is now getting distributed in a bigger compartment, so that is why the blood pressure is falling down. Can you give me an example of this? Sepsis is an example of distributive shock, because the phenomenon of sepsis mein there is going to be vasodilatation. In sepsis what do you get? Vasodilatation. Vasodilatation मतलब vessels are getting broader and broader. मतलब वो क्या हो गया? Distributive shock. Clear? Clear? तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? Vasoconstriction by using drugs like norepinephrine, epinephrine, vasopressors. Clear? Can this treatment be fluid? No, it's not something you want to get. हमको देने का नहीं है, हमको सोच सोच के देना। अगर मेरे को इसमें फ्लूइड देना है, I have to think hard. समझ में आ रहा है? Because the treatment for this is actually norepinephrine and treating the cause. सबका treatment of cause is a treatment. Okay, clear? Can you give me one more example of distributive shock? Like as a nurse, you should know, because इसके लिए you are responsible. You are responsible to treat that patient in that time. If you don't treat, patient will die. Tell me one example where the nurse has to act quickly, otherwise within 5 minutes or the patient will die. The doctor doesn't really make a difference here. It's the nurse that makes a difference. Anaphylactic shock. Anaphylaxis में क्या हो रहा है? आपके पास एक एंटीबायोटिक है, आपने एंटीबायोटिक दे दिया, suddenly patient goes into distributive shock. So unless you vasoconstrict, patient will sepsis में धीरे धीरे हो रहा है ना सब कुछ, इसमें अचानक सा डिस्टर्ब हो जाएगा, फटक से हो जाएगा anaphylactic shock. So that is why as a nurse, as a bedside nurse, you should be able to recognize कि क्या चल रहा है. We'll come to that. Clear? Yes. Huh? Clear? So anaphylactic shock is a form of distributive shock. Okay. Now there is one more shock. The last kind of shock is called as obstructive shock. Now looking at this diagram, tell me what obstructive shock will look like. क्या होगा diagram? मेरे को बताओ. अभी आपने इतना तो पता है मुझे. When you say hypovolemic shock, the water in this is lesser or the blood is lesser. When you say cardiogenic shock, this pump is not working. When you say distributive shock, means vessels is becoming big. So distributive shock हो गया. What is obstructive shock? Simple. अगर यहाँ पर मैंने एक obstruction डाल दिया, तो blood is not going back. Obstructive shock. Give me an example. हार्ट ब्लॉक कैसे होगा? हार्ट ब्लॉक क्या होगा? पंप का प्रॉब्लम होगा. थ्रोम्बस. कौन सा मतलब क्या हो गया ये?
बेड नंबर 8 9 बेड नंबर 9 पेशेंट है वहां पर। हाँ इसी साउथ में। हाँ बेड नंबर 9 क्या है उसको? पल्मोनरी थ्रोम्बोलाइसिस। पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो अगर मेरे को यहाँ पर एक क्लॉट आ गया इधर, हाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। Yes. अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो यहाँ से ब्लड जा नहीं रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। गिव मी वन मोर एग्जांपल ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। हमारे पास एक पेशेंट था काफी देर से बेड नंबर साउथ आईसीयू में लास्ट लेफ्ट साइड बेड पे। हाँ कीर्ति के बाजू में था पेशेंट काफी देर से। हाँ क्या था उसको? उसको क्या हमने ड्रिंक डाला? क्यों डाला था? न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स। सो न्यूमोथोरैक्स में क्या होने वाला है? न्यूमोथोरैक्स में बाहर से हवा इतना जाता है, इतना हवा जाता है कि ये यहाँ से कंप्रेस कर देता है, ये बंद ही कर देता है इसको। हवा इतना जाता है कि वो पुश कर देता है हवा। समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड एज ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। समझ में आ रहा है? ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उसको, एकदम पतला कर दिया उसने, पतला कर दिया तो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, राइट? सो व्हाट यू हैव हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, क्लियर? एनी डाउट्स टिल नाउ? हाँ बोलो। हार्ट फेलियर और रिजेक्शन फ्रैक्शन कम रहता है, इसमें आपने दो बताया है ना, तो उसमें क्या रहता है? रिजेक्शन फ्रैक्शन कम, मतलब हमारे पास फ्लूइड वगैरह सब कुछ है लेकिन हार्ट ही पंप नहीं कर पा रहा है। हाँ हाँ। सर तो ये पेशेंट को तुम अगर फ्लूइड दोगे तो मर जाएगा पेशेंट। इसको अगर फ्लूइड दोगे तो क्या होगा? वो पंप ही नहीं कर पाएगा आगे। तुम यहाँ से फ्लूइड डालोगे वो पंप ही नहीं कर पाएगा। He will not be able to pump now because heart is not able to pump. Reduced ejection fraction है वो। You understand? तो ये heart failure है। Heart failure मतलब heart is not working। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं? शॉक की बात कर रहे हैं। जब heart failure इतना हो जाता है कि blood pressure less than 90 हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? Cardiac शॉक। Clear? सर ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में अगर न्यूमोथोरैक्स उसमें ऑलरेडी वैसोकंस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो उसमें वैसोकंस्ट्रिक्टर लगाने से मतलब नोराडाइड्रिन सपोर्ट लगाने से नहीं काम करेगा तो क्या करना पड़ता है? वो जो मेन इश्यूज को मतलब थ्रोम्बस है तो उसको ट्रीट करना है। समझ में आ रहा है? तो अगर यहाँ पर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया है तो मुझे थ्रोम्बोलाइज करना है। अगर यहाँ पर न्यूमोथोरैक्स अगर हो गया है तो मुझे ड्रेन डालना है। अगर हार्ट का प्रॉब्लम अगर हो गया और एमआई हो गया है तो मुझे वहां का एमआई को ट्रीट करना है बाय डूइंग एंजियोप्लास्टी। अगर मुझे सेप्सिस अगर हो गया तो हम नॉरएड्रेनालिन एपिनेफ्रिन यूज करेंगे। अगर मुझे एनाफिलैक्सिस अगर हो गया तो मैं एपिनेफ्रिन यूज करूंगा। समझ में आ रहा है? तो हर ट्रीटमेंट अलग है, हर चीज का ट्रीटमेंट अलग है। अगर हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया और वो वाटर डिहाइड्रेशन की वजह से जाएंगे फ्लूइड, फीवर चल रहा है इसके वजह से शॉक हो गया तो फ्लूइड दूंगा। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग अगर हुआ है तो नॉन हेमोरेजिक शॉक मिलेगा, हेमोरेजिक शॉक मिलेगा तो गिव ब्लड। सो ईच ऑफ दीस शॉक्स हैव गॉट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट मैनेजमेंट। क्लियर? एनी डाउट्स? Okay. So now once we come to this various kind of the shock, we'll come to the stages of these shocks. Okay. So you understood this much? Yes. Okay. So now we are going to the stages of shock. Okay. Stages of shock. So we come to the stages of shock, or let us, and this is specifically for hypovolemic shock. Okay. Specifically for hypovolemic shock or hemorrhagic shock. Clear? All right. So there is class 1, class 2, class 3 and class 4. What does this depend on? समझ लो, let us take the example of a patient who is bleeding. हाँ, अगर लेस देन 750 ml ब्लड लॉस है, इट इज कॉल्ड क्लास 1। हाँ, अगर ब्लड लॉस 750 से 1500 ml है, इट इज कॉल्ड क्लास 2। अगर ब्लड लॉस 1500 से 2000 है, इट इज कॉल्ड क्लास 3। एंड मोर देन 2000 अगर है, इट इज कॉल्ड एज क्लास 4। क्लियर? क्लियर क्या?
ठीक है, समझ में आया? एनी डाउट्स? नो डाउट्स? तो क्लास 1 का पेशेंट कैसा दिखेगा? व्हाट अ क्लास 1 पेशेंट? सो लेट्स लुक एट दिस. वी लुक एट ब्लड प्रेशर, बीपी, कैपिलरी रिफिल टाइम, न्यूरोलॉजी एंड यूरिन आउटपुट. इस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा क्लास में जाता है पेशेंट. ये सब के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा क्लास में पेशेंट जाता है. समझ में आ रहा है? तो इसका पल्स रेट क्या होगा? बोलो. नॉर्मल, कुछ भी नहीं होगा. तो अगर मैंने 750 ml ब्लड गया मेरा, तो मेरे को कुछ होने नहीं वाला. ब्लड प्रेशर नॉर्मल, कुछ नहीं होगा. ब्लड प्रेशर, कैपिलरी रिफिल टाइम नॉर्मल, कुछ नहीं होगा. न्यूरोलॉजी स्लाइटली वो थोड़ा एजिटेटेड हो सकता है कि मेरा ब्लड गया है. हाँ, तो माइल्ड रेस्टलेसनेस, ठीक है, माइल्ड रेस्टलेसनेस, ठीक है. यूरिन आउटपुट नॉर्मल एंड आरआर नॉर्मल अगेन, स्लाइटली टैकेटिक टू स्लाइटली टैकेटिक, ठीक है. तो कैन वी पिक अप द शॉक? वेरी डिफिकल्ट. ये शॉक को पिकअप करना बहुत मुश्किल है. हाँ, कि भाई इसमें सब कुछ नॉर्मल दिखता है, सबको नॉर्मल दिखता है. वेरी डिफिकल्ट टू पिक अप द शॉक. समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसका मतलब ये क्या है कि अगर मेरे पास 750 ml ब्लड लॉस अगर हुआ तो आई विल नॉट हैव प्रॉब्लम्स. यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ, 500 ml ब्लड लॉस हो गया, मतलब हमने प्रिक कर दिया और समझ लो 200 ml निकल गया, तो दैट शुड नॉट कॉज द पेशेंट टू ड्रॉप एवरीथिंग. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो कारण कुछ अलग रहेगा कि भाई पेशेंट का बीपी ड्रॉप हो रहा है, पल्स रेट ज्यादा हो रहा है, ऐसा कुछ अगर हो रहा है, द कॉज इज समथिंग एल्स, because it will take more than 500 ml of blood loss to cause problems. As a nurse you must understand this. समझ में आ रहा है? हाँ, तो ऐसा नहीं बोल रहे. अब रिलेटिव comes to you, समझ लो आप you were taking care of a patient. Okay, patient is sick in the ward or something. Patient is sick in the ward. IV line got disconnected. थोड़ा सा ब्लड निकल गया. हाँ, ब्लड निकल गया, फिर इसमें दिख गया और फिर ब्लड प्रेशर कम हो गया. And relatives start jumping. अरे ब्लड प्रेशर कम इसकी वजह से होगा कि वो ब्लड लॉस हुआ. No, it will not occur because of that. Because इतना छोटा ब्लड लॉस की वजह से कुछ नहीं होने वाला है. समझ में आ रहा है? हाँ, so you have to tell that no, this is not because of that. We have to evaluate why the blood pressure is dropping. समझ में आ रहा है? हाँ, हमको evaluate करना पड़ेगा क्या हो रहा है. ये वो कौन सा टाइप में है? पंप का फेलियर है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है, वेजोडायलेटेड है या ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है. ये हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई ब्लड प्रेशर क्यों डिक्रीज हुआ है. समझ में आ रहा है? वो 4 कैटेगरी में हमको जाना पड़ेगा. क्लियर? एनी क्वेश्चंस नाउ? एनी क्वेश्चंस? हैव यू अंडरस्टूड दिस? Yes. सो जस्ट टेल मी व्हाट विल अ क्लास 1 शॉक लुक लाइक. बताओ. सर क्लास 1 में उसका रेस्पिरेशन नॉर्मल रहेगा, हाँ. पल्स रेट भी नॉर्मल रहेगा, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा, आरआर भी नॉर्मल रहेगा और उसका मेंटल स्टेटस स्लाइट थोड़ा चेंजेस रहेगा, आउटपुट भी नॉर्मल रहेगा. वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ, ठीक है. तो इसका पल्स रेट कुछ हुआ नहीं. ठीक है. नाउ लेट्स गो टू क्लास 2. क्लास 2 में क्या होगा ना, थोड़ा सा पल्स रेट 100 के ऊपर चला जाएगा. थोड़ा सा पल्स रेट 100 के ऊपर चला जाएगा. हाँ, और ये क्यों हो रहा है आपको लगता है? क्यों? क्योंकि ये हमारा हार्ट है, ये हमारा वेसल है, ये हमारा सर्कुलेशन चल रहा है. यस. हाँ, अभी इसमें ब्लड अगर कम हो गया, ब्लड कम हो गया तो हार्ट जोर स्पीड करने जाता है ताकि ब्लड ज्यादा कर दे, ब्लड ज्यादा कर दे. यू अंडरस्टैंडिंग? द हार्ट स्टार्ट बीटिंग फास्टर, क्योंकि उसको प्रेशर मेंटेन करने का ना इसके अंदर. सो हार्ट स्टार्ट बीटिंग फास्टर, इसलिए पल्स रेट थोड़ा फास्ट होता है. तो एज अ बेडसाइड नर्स हाउ इट इज, अब मैं आया सुबह को, चलिए आया 80 सिस्टोल, 80 ब्लड प्रेशर चल रहा था, पल्स रेट चल रहा था. थोड़ी देर के बाद अरे पल्स रेट 101 हो गया. दैट्स अ प्रॉब्लम. व्हाई इज द हार्ट बीटिंग सो फास्ट? ये आपको देखना है. ठीक है? हाँ. At this time, there is a chance that the pulse pressure will also change. What is pulse pressure now? ये क्या चीज होती है? Difference between systolic and diastolic. हाँ. Difference between, very good. Pulse pressure is difference between systolic pressure and diastolic pressure. मतलब अगर 120/80 है, तो what is pulse pressure? 40. ठीक है? हम क्या बोलते हैं? ये जो pulse pressure है ना, it is closest. और मैं आपको बताता हूँ कि पल्स प्रेशर जो है इसमें नॉर्मल टू इंक्रीज हो सकता है एट दिस लेवल. पल्स प्रेशर
can be normal to increase. अब मुझे बताओ क्या इंक्रीज हो रहा होगा कि पल्स प्रेशर इंक्रीज हो रहा है? उसको क्या करना पड़ेगा इसको कंपेंसेट करने के लिए? ये पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो है तो क्या करना पड़ेगा पेशेंट को? सर अगर पल्स प्रेशर कम है तो नहीं, अगर पेशेंट का ये एरिया में क्या बोला, इसका ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए वो हार्ट रेट बढ़ा रहा है। जब हार्ट रेट बढ़ा रहा है तो क्या बढ़ रहा है? स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। तो पल्स प्रेशर इज वेरी क्लोज टू स्ट्रोक वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? पल्स प्रेशर क्लोज टू स्ट्रोक वॉल्यूम, इसका मतलब ये है when the pulse pressure is increasing it is basically trying to improve the stroke volume. समझ में आ रहा है? हाँ, pulse pressure. So at this time the pulse pressure will change. मतलब what you have a patient का blood pressure 120 over 80 था, okay, and in some time the pulse pressure starts changing. ठीक है? हाँ, इंक्रीज डिक्रीज होगा ना, ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज क्यों होगा? Why will this decrease? ब्लड फास्ट हो रहा है ना, फास्ट हो रहा है तो फीलिंग का टाइम नहीं है, फास्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है? Yes. फीलिंग का टाइम नहीं है तो फास्ट हो रहा है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम एक्चुअली कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा लेकिन रेट फास्ट हो रहा है। क्लियर? Yes, sir. हाँ, सो पल्स प्रेशर डिक्रीज। सो यू विल सी द पेशेंट 120 80 40 हो गया, थोड़ी देर में 120 over 100 हो गया। तो 120 over 80 था, 120 over 100 हो गया। What will you interpret? How will you interpret this? Patient's blood pressure when you came in the morning was 120 over 80. Okay. Now 2 hours later, you found the blood pressure to be 120 over 100. What is happening? सर पल्स प्रेशर कम हो Blood pressure कम हो गया। स्ट्रोक वॉल्यूम कम तो ब्लड प्रेशर अगर कम हो गया तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया, हार्ट रेट फास्ट हो गया। मतलब ये क्या हो गया? क्लास 2 शॉक। समझ में आ रहा है? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes. नहीं, ओके, सुनो। अभी तुम्हारा पेशेंट आ गया, तुम सुबह क्लास के लिए आए, तुम सुबह you came to your patient, okay? This patient was operated yesterday night for a dynamic hip screw. उसको एक DHS किया है, ठीक है? DHS was done. This was a lady who basically presented to the ICU post operative for management. हाँ, अभी क्या हो गया? When you came to the ICU, her blood pressure was 120 over 80. This was the blood pressure. Okay. Now what happened is, after some 3 hours or so, the blood pressure went to 90 over 60. The blood pressure has gone to 90 over 60. ठीक है? So what has happened over here? A, the patient has gone into shock because 90 हो गया. हाँ? So this is clear. Shock में गया patient. Patient is in shock. This is clear. Patient has gone into shock. What is the changes that you are seeing in the blood, in the pressure? 120, 90, 80, 60. ये दिख रहा है आपको change? What is the pulse pressure here? 40 40. 120 minus 80 is 40. What is the pulse pressure here? 30. So what has happened to the pulse pressure? reduce It has gone down. समझ लो ये प्रेशर ऐसा होता, समझ लो ये प्रेशर ऐसा होता, 100 over 80. तो क्या हो गया पल्स प्रेशर? reduce 20. फिर भी पल्स प्रेशर क्या हो गया? रिड्यूस हो गया. So what is happening over here? Probably क्या हो रहा है? स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो रहा है. स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? ये मोस्ट प्रोबेबली हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में है, और इस कंडीशन में क्या शॉक रहेगा? हीमोरेजिक, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव है ये. समझ में आ रहा है? So this will go as post operative condition. It may be blood loss, also called as hemorrhagic shock. Clear? तो अभी अपना पल्स रेट ज्यादा हो गया. ये टाइम पे भी ना इतना पल्स रेट ज्यादा होने की वजह से क्या होने वाला है? ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा. समझ में आ रहा है? तो ब्लड प्रेशर कैन स्टिल बी नॉर्मल. He said ना 120 100. It is not gone less than 90. Blood pressure is still normal. Only what has changed is pulse pressure. Okay. Blood pressure is still normal. What can change? Capillary refill time. What is capillary refill time? So you press and release. It has to, within 3 seconds it has to fill. You understand? Yes. Hold the finger, press it like this,
press it and then release it, and you see how quickly it becomes red. Okay, if it is getting red within 2 seconds, you are very good. If it is not getting red very quickly, capital refill time is prolonged. Okay, so here the capital refill time can get prolonged. Here the patient was slightly anxious. Here the patient can become more anxious. Okay, here because 1500 ml निकल जाएगा, there is a possibility of urine output dropping. There is a possibility. So what is the normal urine output? 50. Normal urine output weight per weight yeah 0.5 ml per kilogram per hour. So the normal urine output is 0.5 ml per kilogram per hour. मतलब एवरेज अगर 50 किलो का आदमी है तो 25 ml आ गया तो भी वी आर कंफर्टेबल. इट इज नॉर्मल. Clear on this? Now clear? So that is kind of normal urine output. Clear? Yes. And here you already have tachycardia that is more than 100. Here the respiratory rate can also go up by more than 14 to 20. Clear? So you can now differentiate class 1 shock from class 2 shock. What are the differences between class 1 and class 2? Class 2, neurologically patient will be more anxious. Class 2, the urine output may drop. Class 2, the pulse pressure will reduce. Class 2, the pulse rate will become more slightly higher, more than 100. Right? So this is class 2 shock. So class 1 और class 2 का difference पता चला? Yes. ठीक है? Any questions? Any questions on this? कैपिटल रिफिल कैसे करने का ये सब समझ में आ गया? Yes. Any no questions ना? नहीं. Clear? Now we go to class 3. Class 3 is obviously going to be more dangerous than this. So इसमें क्या होगा? Pulse rate more than 120. And this is the first time that the blood pressure will drop. ये पहला बार होता है कि ब्लड प्रेशर गिरेगा. तो समझ लो आपका ब्लड प्रेशर गिर रहा है and the cause is hemorrhage. How much blood loss has happened? 1.5. तो अगर समझ लो मैंने आपको बोला हीमोरेजिक शॉक है तो कितना ब्लड लगने का चांस है इसको? 3 से 4 ब्लड. समझ में आ रहा है? 3 से 4 ब्लड लगने का चांस रहेगा. यू आर अंडरस्टैंडिंग ना? बिकॉज अगर मैंने बोला हीमोरेजिक पेशेंट आ गया, इधर था अपनी बाहर रोड पे था, उसको बस ने मारा, इधर आ गया, ब्लड प्रेशर 90 है, तो आपको कितना ब्लड ऑर्डर करना है? 4 ऑर्डर करना ही. ऐसा आपके मन में इट शुड बी वेरी क्लियर, क्योंकि वो क्लियर कट हीमोरेजिक शॉक है. और हीमोरेजिक शॉक में अगर ब्लड प्रेशर गिर रहा है इसका मतलब ये है कि उसको इतना ब्लड लॉस हुआ ही है 1500 to 2000 ml, तो 3 से 4 बॉटल तो मेरे को लगने ही वाला है. समझ में आ रहा है? क्लियर? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? क्लियर? इसमें और क्या आएगा? इसमें न्यूरोलॉजी ही बिकम्स एंशियस नाउ. अभी ये पेशेंट एंशियस रहेगा, वो एंशियस, एक्सट्रीमली एंशियस रहेगा पेशेंट ये. ओके, यूरिन आउटपुट फर्दर ड्रॉप हो जाएगा, लेस देन 0.3 ml per kilogram per hour ड्रॉप हो जाएगा. आरआर जो 14 से 20 था वो 20 से 30 हो जाएगा. You will be breathing at 20 to 30. You understand? Yes. Clear? Yes. So these are the things that will occur in class 3. Any questions? Any questions yet? Any questions? एकदम डिले होता जाएगा वो. समझ में आ रहा है? If it is 3 seconds, it become 5 seconds, it become 6 seconds. समझ में आ रहा है? वो एकदम डिले होता रहेगा. तो ये आपको बेड सेट बहुत सिंपल है कैपिटल रिफिल देखना. यू कैन टेल मी आज कितना था, कल कितना है, तो हमको एक आइडिया आ जाता है कि भाई कैपिटल रिफिल इज गेटिंग मोर एंड मोर डिलेड. समझ में आ रहा है? कैपिटल रिफिल. तो दैट केस डिले. ठीक है? क्लियर? नाउ लेट्स गो टू हायर देन दैट. Higher than that, you have pulse rate that is very high, more than 140. BP that is very low. CRT much delayed. Patient can be even in stupor and coma. जो anxiety restlessness था,
पेशेंट कैन गो इनटू स्टूपर एंड कोमा बिकॉज़ ऑक्सीजन जा ही नहीं रहा है। आपका फर्स्ट थिंग क्या बोला था, परफ्यूजन। इतना 2 लीटर अगर निकल गया, मोर देन 2 लीटर अगर ब्लड ही नहीं जा रहा ब्रेन को, so you can get drowsy and super हो जाएगा। यूरिन आउटपुट विल बिकम वेरी लो, 0.3 क्या 0.2 से भी कम हो जाएगा यूरिन आउटपुट है। आरआर विल बी मोर देन 30। ये आरआर क्यों ज्यादा होता है, ये सब में आरआर ज्यादा होते जा रहा है, क्यों हो रहा है, व्हाई इज इट इंक्रीजिंग, व्हाई इज रेस्पिरेटरी इंक्रीजिंग? सर फ्लूइड फ्लूइड कम हो रहा है ना। फ्लूइड कम से क्या होने वाला है? तो सर हार्ट को ऐसा लग रहा है कि अगर वो ज्यादा फास्ट पंप करेगा ये लेकिन आरआर है, हार्ट रेट नहीं, रेस्पिरेटरी रेट है। ऑक्सीजन सर हाँ? ब्लड में ब्लड लॉस हो जाएगा, ऑक्सीजन निकलेगा ना। सॉरी ब्लड जो हमारा लॉस हो जाएगा तो उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है। हाँ। ब्लड अगर ब्लड सब जगह पहुंच नहीं रहा है तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, और ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तो ब्रेन को क्या लगता है, ज्यादा ब्रीथ हो रहा है, तो ज्यादा ब्रीथ करने की कोशिश करता है ताकि ऑक्सीजन बढ़ाए, इसलिए वो आरआर बढ़ता रहता है। समझ में आ रहा है? इसका आरआर यहां से यहां जाएगा तो मोर देन 30 हो गया। समझ में आ रहा है? क्लियर ऑन दिस? एंड पल्स प्रेशर विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। क्लियर? Clear the on the 4 kinds of shock? Yes. हाँ? Any queries? हाँ? तो ये हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का हो गया, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। इसमें मेरे को ब्लड या फ्लूइड ब्लड अकॉर्डिंगली देना पड़ता है मुझे इसमें फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर केस, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हाँ? This is very different from anaphylactic shock. Now what is anaphylactic shock? You understood hypovolemic shock? Yes. Now what is anaphylactic shock? बताओ मुझे। So what is anaphylactic shock? Anaphylactic shock में एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुझे। हाँ? You have anaphylactic shock. Anaphylactic shock में क्या हो रहा है? You have given an injection like a drug like penicillin. Within 4 to 5 minutes, patient will have certain complaints. Within 4 to 5 minutes. What are those complaints? Huh? What are those complaints? Come on. Tell me. What are you going to look at? आप रोज दर्द दे रहे हो, right? अब दे रहे हो ना, तो what are those complaints? Come on. कि अगर क्या देख के आप बोलोगे कि अरे यार इसको तो एनाफिलैक्सिस हो गया है, क्या देख के बताओगे? बताओ। आप क्या देख रहे हो पेशेंट में? हाँ? So there will be 3 things. 1, airway abnormality. ठीक है? 2, breathing abnormality. 3, circulatory abnormality. A, B, C. Circulatory abnormality and 2 organs. That is either vomiting and skin rash. इसमें से एक भी अगर आ गया, इसमें से एक भी अगर आ गया, it is called as anaphylaxis. इसमें से एक भी आ गया, it is called as anaphylaxis. Airway abnormality मतलब क्या हो गया? तुमने एक ड्रग दे दिया, अचानक सा पूरा का पूरा स्वेल हो गया, ये एरिया पूरा स्वेल हो गया, और ऐसा कर रहा है वो, तो क्या हो गया? वहां पर भी स्वेलिंग हो गया, अंदर स्वेलिंग हो गया, इसलिए वो श्वास नहीं ले पा रहा है। हाँ? इसको हम लाइरिंगोस्पाज़म बोलते हैं। हाँ? एयरवे एडिमा बोलते हैं, एयरवे एडिमा मतलब जो एरिया है पूरा अंदर पूरा जा रहा हो गया अंदर, तो हवा ही नहीं जा रहा, हवा जाने को भी जगह नहीं है। हाँ? एयरवे एडिमा। ब्रीदिंग एब्नॉर्मैलिटी उसके साथ भी होगा, नहीं तो ब्रोंकोस्पैज्म जो भी होगा, ब्रोंकोस्पैज्म, तो ब्रीदिंग एब्नॉर्मैलिटी आएगा। ठीक है? थर्ड थिंग, अचानक सा 1-2 मिनट में ही ब्लड प्रेशर 100 से 120 से सीधा 60 सिस्टोलिक हो जाएगा, सर्कुलेशन एकदम ड्रॉप हो जाएगा, नहीं तो 5 मिनट के अंदर अंदर पेशेंट को वॉमिटिंग भी चालू हो जाएगा और पूरी बॉडी में रैशेस भी आने चालू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसमें से कुछ भी हो सकता है। अगर तुमने पेशेंट को पेनिसिलिन दे दिया, कोई एंटीबायोटिक दे दिया, और पेशेंट सडनली ब्रीथिंग डिसऑर्डर की बात कर रहा है, यू मस्ट थिंक ऑफ अगर आपने पेशेंट को टीपीए दे रहे थे और सडनली स्वेलिंग लिप्स हो गया, स्वेलिंग आंख में स्वेलिंग नजर होने लग गया, यू हैव टू थिंक अबाउट, क्योंकि उसमें एयरवे का प्रॉब्लम है। भले ही उसको सूजन इधर हो रहा है, लेकिन इधर भी सूजन हो जाएगा उसको। समझ में आ रहा है? हाँ? फिर थर्ड, सडनली आपने पेनिसिलिन दिया और एंटीबायोटिक दे दिया और ब्लड प्रेशर अचानक से 60 अगर हो गया, तो आपको क्या सोचना है? एनाफिलैक्टिक शॉक। अगर
पेशेंट को आपने कुछ दिया एंड पेशेंट को वॉमिटिंग चालू हो गया और सब जगह रैश चालू हो गया, आप क्या सोचोगे? एनाफिलैक्टिक शॉक। ये सब में अगर आप विद इन 5 मिनट्स वर्क नहीं करोगे तो पेशेंट कैन डाई। एनाफिलैक्सिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अचानक से क्या होने वाला है, पूरा का पूरा सर्कुलेशन ओपन हो जाएगा, इससे ब्लड प्रेशर एकदम डाउन हो रहा है। समझ में आ रहा है? ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्लड प्रेशर अचानक डाउन होगा, खाली ये भी आ सकता है, फिर भी पेशेंट मर जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये होना है, खाली ये भी हो सकता है, ब्रीदिंग अबनॉर्मैलिटी। विद इन शॉर्ट टाइम दिस विल हैपन, विद इन शॉर्ट टाइम दिस विल हैपन। समझ में आ रहा है? हाँ, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस ऑफ द पेशेंट डाइंग इफ यू डोंट पिक अप दिस इमीडिएटली। तो आपको तभी क्या करना है, एज अ नर्स क्या करना है, आपको तुरंत यू हैव टू गिव वन मेडिसिन दैट यू शुड हैव द टिप ऑफ योर टंग। व्हाट इज दैट? एड्रेनालिन। एड्रेनालिन समझ लो हम लोग यहाँ पर है, हमारे पास आईवी लाइन नहीं है, कुछ नहीं है, हाँ, यू गिव इट आयन। कितना हो गया? 0.5 ml IM एड्रेनालिन। किधर हो गया? एंटेरोलैटरल थाई, ठप करके दे दोगे क्योंकि इसमें मसल ज्यादा है, अब्सॉर्प्शन जल्दी होगा, हाँ, साइड इफेक्ट कम रहेगा। तो एंटेरोलैटरल थाई पे एड्रेनालिन दे देंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, 0.5 ml IM एड्रेनालिन, दिस इज अवर डोज। खैर हम लोग तो आईसीयू में है, आईसीयू में तो सब पेशेंट्स को आईवी लाइन होता है, तो हम IM क्यों दें? तो हम क्या देंगे? हम लोग IV देंगे। क्या देंगे हम लोग? 20 माइक्रोग्राम ऑफ एपिनेफ्रिन। कितना? 20 माइक्रोग्राम ऑफ एपिनेफ्रिन। ये हम कैसे बनाते हैं? कुछ डोज बनाते हैं हम लोग, तो 3 माइक्रोग्राम पर सीसी होता है वो। तो कितना सीसी हो गया उसका? अराउंड 6 to 7 सीसी। समझ में आ रहा है? हाँ, हम लोग जो पुश डोज एड्रेनालिन बना के रखते हैं एवरी टाइम, इट इज 3 माइक्रोग्राम पर सीसी। वी टेक एड्रेनालिन, हाँ, एंड वी डाइल्यूट इट, देन वी रिमूव, वी अगेन डाइल्यूट इट, अगेन रिमूव, तो वो 3 माइक्रोग्राम पर सीसी हो जाता है वो। समझ में आ रहा है? हाँ, या 1 माइक्रोग्राम पर सीसी भी कर सकते हैं उसको। अगर 1 माइक्रोग्राम पर सीसी हो गया तो 20 सीसी यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? वो 5 माइक्रोग्राम पर सीसी होता है, 5। तो कितना सीसी बनाएंगे हम लोग? 4। हम लोग जो पुश डोज बनाते हैं वो 5 माइक्रोग्राम पर सीसी होता है, 5 माइक्रोग्राम पर सीसी। ओके, 5 माइक्रोग्राम पर सीसी। तो इफ यू वांट टू गिव 20, how much I'll use? 4. You know how to make push dose एड्रेनालिन? कैसे बनाते हैं हम लोग? पहले तो 9 ml NS plus 1 ml एड्रेनालिन plus 9 ml. That is why you should know the way you prepare it, because आपको ये टाइम पे इतना देना पड़ता है, लास्ट मिनट में बना नहीं पाएंगे वो समय। तो you should know that is always prepared and kept, you know। कितना हो गया? 1 ml एड्रेनालिन plus 9 cc नॉर्मल सलाइन। ये कितना हो गया? 1000 माइक्रोग्राम हो गया in 10 cc। तो मतलब कितना? 100 माइक्रोग्राम पर सीसी हो गया ये। ठीक है, ये 100 माइक्रोग्राम पर सीसी हो गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? अभी उसके बाद उसमें से 1 ml लेना है। इसमें से मैं 1 ml निकाल रहा हूँ, हाँ, एंड आई एम पुटिंग अनदर 9 ml। तो ये कितना हो गया? 10 माइक्रोग्राम पर सीसी। यू गेट 10 माइक्रोग्राम पर सीसी। हाँ, मतलब फिर इसमें से मैं निकाल के 1 ml निकाल के, हाँ, इसको अगर डाल दो, हाँ, अगर इसको 10 में डाल दो तो कितना हो गया? 1 माइक्रोग्राम पर सीसी हो जाता है ये। नहीं तो मैं इसमें से 2 सीसी दे सकता हूँ। समझ में आ रहा है? I can do it if I want to dilute it like this. समझ में आ रहा है? तो उसके बाद क्या होगा? अगर मैंने इसको ऐसा रखा तो इसके 2 सीसी दे सकता हूँ। क्लियर? इसमें से अगर मैं 5 ml करके दिया तो 5 माइक्रोग्राम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 10 माइक्रोग्राम पर सीसी आ गया, कितना हो गया? 2 सीसी। So I will give 2 cc of push dose adrenaline, 2 cc of push dose adrenaline if it is 10 microgram per cc. Clear on this? समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा। So I'll again explain how I'm making this drug. So you don't understand how I'm making the drug? Did you understand? You understood or no? आगे का नहीं समझ। हम लोग को कितना देना है? 20 माइक्रो। हम लोग IM अगर दे रहे तो सीधा 0.5 1. लेकिन हम लोग तो आईसीयू में है, हम लोग को एक्शन क्विक चाहिए। पॉइंट इसको IM देंगे तो एक्शन तो टाइम लगेगा, इसको टाइम नहीं लगने वाला है, ये तो ठग करके हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? इमीडिएटली हो जाएगा कि वर्क इमीडिएटली, राइट?
तो मैं क्या करूंगा, मैं आई हैव ऑलरेडी मेड दिस पुश डोज, मैं कैसे बनाता हूं, 1000 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम ऑफ एड्रेनालिन। क्लियर ऑन दिस? हाँ, क्लियर ऑन दिस? हाँ, अगर मैं इसमें से 0.5 निकाला, या ठीक है मैं इसको यूज कर लिया, 1 cc प्लस 10 cc 9 cc नॉर्मल सलाइन, ये टोटल 10 cc हो गया। हाँ, इसमें कितना हो गया, 100 माइक्रोग्राम पर ml एड्रेनालिन हो गया ये। इसमें से मैं अगर 1 ml निकाल दूंगा, ये टोटल 10 cc है ना, अब इसमें से मैं 1 cc निकाल के उसको डाइल्यूट 9 cc करूंगा, डबल डाइल्यूट हो गया ये। जब डबल डाइल्यूट करूंगा तो ये कितना हो गया, 10 माइक्रोग्राम पर ml। ये क्लियर हो? हाँ, मेरे को कितना देना है, 20। कितना दूंगा मैं, 2 cc। हो गया मेरा काम इसमें, ठीक है, हो गया मेरा काम इसमें। एंड देन मैं खाली इतना देके रुकूंगा नहीं, इतना देके मैं रुकूंगा नहीं, मैं इतना ही 2 cc का मैं इन्फ्यूजन चालू कर दूंगा, सेम चीज का मैं इन्फ्यूजन चालू कर दूंगा। समझ में आ रहा है? हाँ, क्लियर? कब तक इन्फ्यूजन चालू रखूंगा मैं, जब तक कि मेरे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। इसमें प्रॉब्लम में क्या होगा, एयरवे एब्नॉर्मैलिटी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एड्रेनालिन में बीटा 2 एक्शन होता है। वो बीटा 2 एक्शन क्या करता है, वो एडिमा कम करता है, वो ब्रोंकोस्पैज्म कम कर देता है। समझ में आ रहा है? ब्रोंकोस्पैज्म कम कर देता है, इसलिए एड्रेनालिन इसमें काम करेगा और ब्रीदिंग और एयरवे अपना ठीक होने का चांस रहेगा। एड्रेनालिन में अल्फा इफेक्ट होता है प्लस बीटा इफेक्ट होता है। अल्फा और बीटा इफेक्ट की वजह से क्या होगा, सर्कुलेशन मेरा ठीक हो जाएगा। समझ में? एंटी एलर्जी प्रॉपर्टीज की वजह से बाकी सब भी ठीक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, सो दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू गिव एड्रेनालिन एंड देन आई विल कीप द इन्फ्यूजन टिल दिस बिकम्स ओके। क्लियर? क्लियर? हाँ, इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, ये तो मेरा प्राइमरी ड्रग हो गया। हाँ, दूसरा क्या हो रहा है एनाफिलैक्सिस में, ये साइमल्टेनियसली मैं क्या करूंगा, दूसरा क्या हो रहा है इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक हो रहा है, मतलब ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। हाँ, मैं एड्रेनालिन देके उसको कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरे को उसका प्रेशर थोड़ी देर मेंटेन के लिए क्या देना पड़ेगा मुझे, तो चल ही रहा है, वेसोकंस्ट्रिक्शन चल ही रहा है, वेसोकंस्ट्रिक्शन चल ही रहा है, लेकिन मेरे को उसी टाइम पीरियड में जो मेरा हार्ट है, पंप है मेरा, ये मेरा वेसल है, ये मेरा ब्लड है, ये मेरा बड़ा हो गया है, प्रेशर मेंटेन करके मैं तो वेसोकंस्ट्रिक्शन तो दे रहा हूं, मैं वो तो दे रहा हूं, मतलब एड्रेनालिन दे रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर सब लोग ठीक नहीं हो तो मैं क्या दूं, वो टाइमिंग के लिए इसको भर दो ना, और इसको और भर दो फ्लूइड। So I will give fluid very 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 fast, प्रेशर बैग से फ्लूइड दे दूंगा ताकि वो टाइम के लिए एटलीस्ट वो भरे रहे। समझ में आ रहा है? तब तक एड्रेनालिन काम करेगा। Understanding? हाँ, though it is distributive shock, I still want to get this patient blood pressure up. इसीलिए I am trying to fill the circulation a little bit so that the adrenaline will also work well. Clear? हाँ? So what I'm going to give? I'm going to give fluid on top of this. Clear? हाँ? So I will first thing will be adrenaline. How am I going to treat this patient? सबसे पहले क्या करूँगा मैं? First thing I'm going to give is adrenaline. Very important, and you should know the dose. You should know the dose that I told you. IM adrenaline ka and IV adrenaline ka. Second thing, what I'm going to do? I'm going to give fluid fast, rapid. Right? What is the third thing you will do? I want to reduce the edema. So edema कम करने के लिए क्या ड्रग होता है? एक और ड्रग आप बताओ एडिमा कम करने के लिए? एडिमा, पल्मोनरी एडिमा हो गया। ये कौन सा एडिमा है? ये टिश्यू एडिमा है। टिश्यू का एडिमा अगर हम लोग, मेरे को इधर कुछ सूजन होता है तो हमको क्या देते हैं, हम लोग क्या देते हैं, स्टेरॉइड। तो हम क्या देंगे इधर, स्टेरॉइड, हाइड्रोकॉर्टिसोन। ठीक है? एंड व्हाट इज द नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी टू टेल दैट दिस पेशेंट इज एलर्जिक टू XYZ ड्रग जो कि हमने यूज किया हुआ है। क्लियर? Clear? So the treatment is very simple. If you don't do this fast, patient will die. Simple, patient will die. ऐसा सुनने में है ना, नर्स ने गलत इंजेक्शन दे दिया, ठीक है ना, गलत दे दिया, लेकिन ठीक है उसको इमीडिएटली एक्ट करो, पेशेंट बच जाएगा। You are understanding? हाँ? So you have to understand this. That is why this is involved. This is also shown in ACLS. ACLS में भी एनाफिलैक्सिस आता है, BLS ACLS होता है उसमें भी एनाफिलैक्सिस आता है, because it is a life-threatening condition which you need to act very quickly on.
क्लियर? हाँ, अंडरस्टूड? एनाफिलैक्टिक शॉक समझ में आ गया? So today what we have done is we have done hypovolemic shock, we have understood shock as a whole, and we have done anaphylactic shock. ठीक है? We'll stop for now. ठीक है, we'll stop for now.